So this screen is visible to everyone? Not getting any confirmation. Yes, sir. We can see. Okay. So every Sunday we will have the fixed schedule what we are going to discuss. Like we will just have a basic discussion regarding the rules and mindset every Sunday. Then we will have some small discussion on the goals and our performance. Then we will go for the market trend where major market is going on. Like we will discuss only on Nifty, small cap and mid cap, and if some other sectors will looks okay, then we will see the chart of those particular sectors also. Then we will do the case study of the last week. Here I am requesting everyone, means if someone is getting good result by using our superhero indicator or by using our compounding funda or whatever way he is getting any good result trade. That is my humble request with everyone that he has to share the same thing so that we can discuss that in our weekly discussion. What he has done, what is the input he has took before taking any trade. Even for failure also, if you are finding anything that this trade was okay as per me, but I failed here. So that also we can discuss here. Then we will have our watch list for next week and then the question and answer session. So let's start with our regular practice, like our mindset and roles. So is I always try to say that everyone must have active income, because active without having active income we will not able to do, or we will not able to do trading as per our strategies, because only the active income is a part which can help us to sustain or to be in the market for a long term. Because if we use trading as our source of income, then we may not take trade for a long, or we cannot have a position for multi-bagger returns. So the first one is the active income. Uh, then second is the learning, like learning from our mistakes, learning from our colleagues, and learning from our seniors. So this learning also need to be continue part of our life. Rules. I think everyone is having the rule PDF with you, because when we started this compounding funda, first we made a rule and we shared with all of you. See, those the rule is having almost 24, 25 rules are there. Not necessarily every rule is for you, but whatever you feel that this rule is implement can be okay for me, or this rule can have meeting my requirements, those rules you need to define yourself. I don't think any one of you has made your rule book. Anyone has make rule for yourself? Just reply. Have you make rules? We have share this rules book to everyone. So have you made your rules? What rules you are going to follow? Anyone? Not getting any response. So no one is making rule. Yeah, Karthik, the rule which we have said in the YouTube video, but see, those are the general rules. It is not necessary that all the rules are implement can be used for you also. So whatever rules you feel that it is okay for you and or it is meeting the your requirement, those rule you need to define. Like as I have my defined rule, like if it is risk is more than 3%, I am not taking any trade. Likewise, I am not going for a penny stock. I will not look for a micro cap companies. Likewise, you have to define your rules actually, and this would be your first step. Then next will be our morning routine, which I always ask you to do that. I prefer to do walk for 30 minutes every morning. Likewise, because being healthy and when you wake up early in the morning,
and you do meditation or a morning walk or reading a book, this will give you a different kind of mindset. The early morning before sunrise, whatever activities we are doing, those activities are giving different kind of energy. So try, if you are not doing that, try to do all these things in the morning. Even if you are facing that you are not able to read a book in the evening or in the night, just start a reading book around 5:30. You will feel something different. And the next one is the goal implementation, which we have shared last week. So everyone has to make your goals, and then you need to start implementation of the same. So this is the basic of the goals. What should be the goals? So your goal should be specific. As I mentioned, my goal is to make 50,000. Likewise, everyone has to fix. Here we will discuss only the short-term trading goals. Long-term trading goals will be the different. That you have to define as per your risk appetite, as per your risk profile. You need to define for long term. Here we will majorly discuss on the short term trading goals. It should be measurable, achievable, realistic, and timely. Means time frame must be there. I will earn 50,000 from stock market. Whether I will earn in 1 month, 1 year, or 1 decade. So the time should be defined one. So now we will analyze the trend where market is going on. So is this Nifty 50 chart is visible to everyone? Yes. Yes, sir. So if you see the Nifty 50 chart, it has given exit as per our superhero because it has just crossed the line. If you see here, it has just crossed the GMMA line, and now it is close below there. Means it is somewhat like this kind of thing. So there are possibility that large cap companies can give you some correction in coming days. Till here it was up, but now just it Friday's session close below this line. Though the long term strength is there, but in short term you may face or you may see some correction in the large cap companies or the Nifty 50 companies. Any doubt in this chart or any query? Even if you see this ADX and everything, सर ADX is हमारी इसमें अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस हफ्ते के लिए? जैसे निफ्टी 50 गिर रहा है और निफ्टी 50 की पोजीशन थोड़ा वीक लग रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? पोजीशन को मतलब स्क्वायर ऑफ कर ले अपनी को, या थोड़ा 50% पे ले आए, कैसे करें? See, if you are in profit and see, this is the Nifty 50, so definitely we are not playing with the Nifty 50, we are playing with the stock. It may be part of Nifty 50. Yes. So अगर हमारा स्टॉक ने एग्जिट स्ट्रेटेजी दे दिया है, इफ यू टू पोजीशन ऑन आवरली चार्ट, आवरली पे एग्जिट आ गया, सिंपल एग्जिट. अगर आपने डेली पे लिया, डेली पे एग्जिट आ गया, सिंपल एग्जिट. वी नीड टू फॉलो अवर एंट्री एंड एग्जिट. इट देखिए निफ्टी 50 में करेक्शन आ सकता है, नॉट नेसेसरी कि tomorrow it will like BSC, one day it has given exit, next day it is again given entry. But if you have defined your exit strategy that when stock will close below the my EMA line, I will exit. So in that case, wherever you are getting stock is giving your exit strategy, just exit, regardless of anything. Thank you. Anything else? Then this is the chart of mid cap. Again, mid cap is just trying to breach the exit criteria. Just it is on the border. Maybe on Monday, mid cap in many mid cap stocks can give you the exit. Since here it is traveling up on the it, but now it is just started to touch the line, and it may be possible that it can give you the exit in many stocks. So just follow your exit strategies. If you are took position on the Rajkumar sir, after completing this PPT, we will come for the question and answer. And similar way, small caps also giving the same kind of setup. So small cap also you can see the correction.
in coming week, because all are to the border of the exit. Possibly some good news can come tomorrow and it can go up. Otherwise, be strict to your exit strategy. Regardless, मैं शाम तक देख लेता हूँ, 3 बजे तक देख लेता हूँ. अगर आपने आवरली चार्ट पे एंट्री लिया है, आवरली चार्ट पे आप एग्जिट दे दीजिए. अगर डेली चार्ट पे है तो डेली चार्ट के लिए 315 तक का वेट कीजिए, बट डोंट लूज योर प्रॉफिट ऑन द होप. अगर आपका पोजीशन प्रॉफिट में, ट्राई टू बुक द प्रॉफिट. So these are the some cases which give good result last week. This is the first chart of MCX, which we have took entry at 3690, and it has given exit at 3850. Even it is not given the perfect exit. If you see, it is just touch the line, but as I mentioned, we have to respect. So we have to exit here. If someone is not exited here, he could have got 3 to 4% more. So we took entry at 3690 and our exit has came at 3950. So almost 10% we generate in 2 days in MCX. If you see why it has performed, the same thing is here. The DI was increasing, ADX was increasing, and RSI was also increasing. So whatever the input criteria we have selected, we have just followed, and then it has given a good return. Means within 2 days, you were able to generate 8% returns. Anyone traded this? This I had shared on the Monday at 3690. And then this was the BSC. I had exited on the daily chart, but again I had entered on a hourly chart here and exited and made 3.5% in 1 day. The same thing was here also. ADX was increasing, RSI was increasing, and volume peak was there. So on the daily chart, I had already booked at 35%, exited based on my daily exit. Again, I entered. So what I want to tell everyone that be strict to your entry and exit. हमें वापस किसी स्टॉक में एंट्री करने में कोई शर्म है क्या? आज हमने एग्जिट किया, कल अगर उसमें वापस एंट्री मिल रहा है तो हम वापस एंट्री करेंगे ना. It is not like that ki we have just exited, then we will not look at those stock in future. If that stock is coming in our screener or our radar, we'll take multiple entry and exit. This is the SPC product which I shared yesterday. When I said it was 25, then it is given a return of almost 3% yesterday itself, and still it is in strong uptrend. Even with our GMM strategy also, now just this green lines has started move upward. And if you see the fundamental of this company, this company looks like a core compounder kind of thing. Though the value you will see 25 rupees, how you are considering this as a core compounder. But this company has given many times, did the splits, many times this company has given bonus. So you can see the value of 25 rupees only. But market cap was this company is okay. It is around 750 crore worth of company. But still, this we have took position on the short term. When it will give exit, we'll exit from this stock. Now, this Sun TV I had given a day before yesterday. The reason for giving this stock is very simple. Now we are into the phase of election. Everyone is clear why I am discussing on election part for this particular stock? Or anyone has doubt why I am discussing election with Sun TV? Anyone has any doubt why I am discussing Sun TV and election together? No. Yeah. No paper. Yeah. So what happens, ma'am? See, this media house has their regular business throughout the years. But whenever there are some elections or other things are coming, so they have the probability to get additional income by the advertisement of various political parties. So if you see, if you see the media, CNX media,
it is in continuous downtrend, but since last week, it is giving some this trigger that something is happening. And every time whenever there are this Lok Sabha election is happening, all these media companies are getting good returns. Though now this television advertisement has came down, but other companies like Effels or the some YouTubers and others who are making videos and other things for this political party get benefited from this. So, like Sun TV, why I have selected this Sun TV is good representation in the south side, and it is having the good market cap also. And if you see monthly chart, it is kind of a core compounder. So that is why I have selected. Means this you can play on the weekly chart also till election. After election, something will happen and it can go wrong also. So all means everyone is requested to look for some media stocks, particular in this phase till this election is getting completed. Clear? Okay, sir. Now these are the some failure stocks which we failed last week. So first one is TVS. TVS we were failed only because we again took a wrong entry. Yes, ADX was falling down. Only RSI was in uptrend. Remaining both the parameters were in downtrend. But at the same day, there was a sudden spike in the CNX auto index. So we thought that it could give a good result. But though our stop loss was triggered next day with hardly 1.3% only. So when we go for a gain, we are getting almost 3.5 to 10%. But whenever we are exiting with 1.5 or 2% only. And this is the India Cement. Again, we made position at the end of the day around 228 and our exit trigger at 227. So of 2 rupees of stop loss, we exit. So we exited with a stop loss of 1.5%. But if we could gain, we can gain 6 to 7%. Again, here actually everything was means this position also we took based on the RSI increase, and this DI was positive, only ADX was negative. So we failed here. Watch list I will share. Now I am open for question and answer for next week. Watch list I will share. Rajkumar sir, you had some query. दो तीन सवाल है. One is ये whatever you showed Sun TV, where you actually recommended, because I am following WhatsApp. So WhatsApp? but I don't Day see. before yesterday, actually on Thursday, I had Thursday or Wednesday. Thursday was off, so on Wednesday I had shared this Sun TV. So everything is on WhatsApp group only, no? WhatsApp as well as on this our Discord also I had shared this Sun TV. No, but Whatever chart I am sharing in the WhatsApp, I am sharing in Discord also. So WhatsApp following is okay. That is only it's okay, no? If we just choose WhatsApp. No, actually we are just trying to shift to Discord because everyone is not on the Discord, sir. Discord is for the security purpose and the privacy purpose. In WhatsApp we cannot. Yeah, Discord. Discord. Yeah. Okay. That is sooner we will going to close this our WhatsApp group actually. Once all the members will be on the Discord, this WhatsApp will automatically get closed. Okay. Now second question was maybe this red becoming red. That means the candle is touching to the our. Yeah, as soon as it will touch to the EMA line, it will become red. But if it is not close below, if you are looking on the daily chart, during the day it may become red, but if close will be above the red line, above the line, it will automatically become green. So if you are tracking on the hourly chart, wait for the closing of that particular hour. Okay. So means candle body should be touching or below the line. Should be closing below the line. Body, not the spike. Not the spike. Okay.
Even And if you are setting this alert on the trading view, na, if you are taking position and you want to set alert, there also you have to select closing of hourly chart or weekly chart or monthly chart or daily chart. It should not be touching to the line, otherwise you will get frequent entry exit. If everyone interested, I can show how to put alert also. please show that. That is one. Okay. And maybe I have a couple of 3-4 more queries. So once you are through with alert, Okay. Huh. So my screen is visible. Yes, Bhupendra. So these are the stock. Actually, this I will share. So I have selected these stocks for the next week. Not necessary that we need to start and jump and buy it. If you let's we open, so just we can discuss only 7 stock I have selected. So first one is the JB Chemical. If you see this stock is respecting our AMA line continuously. So your entry should not be just once it open up day after tomorrow and just jump and buy. You have to wait for the entry when it comes near to our exit or near to our AMA line. Currently, it is extended by almost we can say 4% from our exit 1754 and 180. So almost 3% risk is there. Now we will go for setting of a alert. So Rajkumar sir, whenever you want to set a alert, just open the chart of those particular stock. Now click onto the alert portion. The company name will come automatically. What you want to set alert, you have to just click closing down. We will select our superhero and we need to select AMA. Now here you will find only once per close, once per minute, once per bar. So we have to select this once per bar close. जब ये बार पर्टिकुलर उसके नीचे क्लोज होगा तो ही वो अलार्म देगा. टच किया और वापस ऊपर गया तो वो अलार्म नहीं देगा. सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस पोर्शन once per bar close. So whenever if on hourly chart, if it is come down and go up, it will not give alert and just need to create. If you see this particular candle, Rajkumar sir, see this stock has gone down but not close below it. Again this line become green, and in this case you will not get alarm. Alarm will come when this kind of close will be below the bar. Is this creation of alert is okay or need to repeat? एक बार वापस जरा आप सेट वो दिखा वहां पे जस्ट अलर्ट का Okay, so let's go for CDSL. If now if you want to set a alert for this when it is closed. So if you want to set alert for hourly chart, you need to select chart for hours only. Whatever chart will be there, alert will be automatically set on those particular setup. If we set alert on the daily chart, alert will be automatically on daily. Like CDSL. For CDSL, we will select as a closing down. In place of price, we will select our superhero indicators and we'll go with AMA. And you can just need to put this once per bar close. So whenever the close will be below that AMA line, alarm will come. So it means Yeah. alert will come at the end of day. Not end of the day. If you are setting on the hourly basis, then once the hour will complete, it will give alarm on hourly basis. No, daily किया तो Yeah, daily kiya to once around 320, you will get alarm at 320 only. Then it may be below 6% or 7%. It can happen anything. okay. Like in this case, and you just need to create. Now, if this is the case, so your exit could be below 2-3% below the line. But what if it's come back?
So hourly will be the difference one and the daily will be difference one. And once you will set alerts, you will get alerts continuously like this. ये अलर्ट मोबाइल पे भी आ जाएगा? Yeah, it's came on the mobile also. In the mobile you will get in the notification section. So when like we have selected for exit na, you can select for entry also. Alarm you can set for alert, you can set for entry also. Like if this stock is trending below this line and you want that when CDSL cross above this line, I should get alert. Likewise, you can also get the alert. It will be just reverse. Alert will be just reverse. So that means once you put alert, so it will be always live. Yeah, it will be always live. Unless and until you will not go and close those alert. Like if you see this alert, now until I will not close this alert, it will continuously give signal. Like this RVNL, I had exit, but I have not deselect or not deleted RVNL from here. So whenever RVNL is closing down, it is continuously giving this RVNL closing down. RVNL closing down. So unless and until I will not deselect or delete alert from here, it will continuously give alert. So your recommendation is 1 hour. 1 hour. It's depend on your entry, sir. If you have took entry on the daily chart, then it should be on daily. If your entry on the hourly chart, then it will be on hourly. Okay, okay. And one more thing, Bhupendra ji, now when this becomes X dividend, na, Yeah, तो रेड हो जाता है. true. So But if it is our exit is trigger, na, then we have to exit. Sir. हमारे पास ये इंडिकेटर है, देखिए Yes. ये मोटा लाइन दिख रहा है ना, वो रेड हो जाए तो बेच देना है, रेड हो जाए तो मोटा लाइन, हाँ रेड हो जाए तो बेच देना है. Yes. For short term. thank you, Bhupendra. Thank you. रेड था, ग्रीन हुआ खरीद लेना है, फिर रेड हो जाए तो बेच देना है. हाँ लेकिन लगे रहना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना. नो नीड टू. अगर आपने अलर्ट डाल दिया है तो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन सेक्शन में भी वो अलर्ट आता है. You will get alert in your mobile's notification section also. एक गिलास पानी लौटा पीने के लिए. रेड आ रहा है तो बेच देना है, जिससे खरीदना है. This what is कहाँ तक trade? मार्केट किसी का नहीं है. इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे तो उसका तो बात ही अलग है. Yes. म्यूट कर दीजिए ना सबको सर. All are mute only. Manoj is having some query and he is unmuted. Yeah, Manoj, any query? Anyone has any query? सर ये तानला प्लेटफॉर्म है, ये इसका चार्ट एक बार समझाइए ना थोड़ा. मतलब उसमें अभी थोड़ा लास्ट वीक में थोड़ा हाइक आ गया था. So you have took entry based on hourly chart or daily chart or weekly डेली chart? चार्ट सर, डेली चार्ट. Okay. So this chart is visible? जी सर. So what was your entry point actually? Entry at which price? See, still it is means at what price your entry was there? एक्चुअली सर ये मैंने मतलब लास्टली मैंने ये बहुत दिन पहले परचेस किया है. Because it is, लेकिन it is अभी in इसका continuously एग्जिट. downtrend. Actually, if you see, it is in continuous downtrend on weekly Yeah. chart also. Now on weekly chart, it is just given entry. But on daily Yes, sir. chart, the risk reward is not matching actually. Even if you see current status, your exit or your stop loss is at 933.
and your buy price, if you buy at current price is 985 also, even though it is 5% plus risk. Yes, sir. And it is, if you see, it is just getting resistance from this level 1042. This candle, or not even this candle, from this candle top also it is getting resistance. So 1021 or 1042 will act as a resistance. Okay. So if you are in profit, just follow your exit criteria. Okay, sir. Okay. Thank you. भूपेंद्र जी, इसमें अलर्ट में एक्सपायरेशन इज व्हाट? क्लोजिंग ऑफ अलर्ट, देयर सम डेट एक्सपायरेशन. Yeah, that you need to define, sir. You want for 1 month, 1 year. That is the time period up to those particular date. Up to that particular date, this Okay, alarm will be continuous. okay, thank you. JP, यस सर। कुछ लोगों को अगेन जो सुपर हीरो इंडिकेटर का सेटिंग और ये है, उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, तो एक बार वापस उसका थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो ना। मैं करूँ तो आप कर लो। हाँ। मैंने ट्रेडिंग में लॉगिन नहीं किया। ओके, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जो BTST का स्टॉक जो हम लोग शेयर करते हैं ना, दैट आल्सो विल बी एक्सप्लेन बाय JP। जो BTST स्क्रीन जो जा रहा है ना JP नया, यस उसके सर। बारे में जस्ट थोड़ा सा सबको बता देना, वो कैसे काम कर रहा है और क्यों रिटर्न मिलता है, या फेलियर है तो कितना है। और BTST का थोड़ा, मे बी आई एम न्यू, थोड़ा बताना BTST होता है क्या? That is why we are just trying to close up everything on priority. Then we'll discuss more on the BTST. What is the meaning of that BTST stocks, which we are sharing since last 2-3 days. थैंक यू. Should I share my screen? Yes. सुपर हीरो के लिए सर चार्ट को ओपन करना है, सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में सुपर हीरो एडवांस आपको मिल जाएगा, उसको लोड करना है। आफ्टर लोडिंग द चार्ट विल बी लाइक दिस। उसके बाद हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले हमें लेबल्स को रिमूव कर देना है यहाँ। इसके बाद शेप्स में जाके यहाँ पे हमें फ्लैग सेलेक्ट करना है एंड अबाउट द बार। आफ्टर दैट AMA लाइंस जो है उनको थोड़ा सा थिक कर लेना है ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो। एंड अगर आपको वैल्यू चाहिए स्टेटस बार पे, यहाँ पे तो वैल्यू इन स्टेटस बार को इनेबल रखना है, और अगर नहीं चाहिए तो इसको अनटिक कर देना है। जैसे मैं यूज नहीं करता हूँ तो अनटिक एंड सुपर हीरो इज लोड। एंड जो सेकंड लेबल देखने के लिए मैं डबल पेन यूज करता हूँ। जैसे किसी भी चार्ट को, चलो विप्रो पे ही दिखा देता हूँ। विप्रो से अगर मैं सुपर हीरो हटा देता हूँ तो दोबारा से यहाँ पे जाना है, नीचे वाला पेन सेलेक्ट करना है एंड अगेन लोड द सुपर हीरो एडवांस। यहाँ पे आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, और इसको यहाँ से आप मैनेज करके देख सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर नीचे हो जाता है एंड यहाँ से आगे पीछे हो जाता है। दैट्स इट, इतना सा सेटिंग है। एवरीथिंग इज क्लियर सर? JP भैया, इसमें जो लेवल तो आ रहा है, जो लेवल है वो वाला एक बार फिर से बताइए। ये लेवल्स आपके में आ रहा है या आ नहीं रहा है? आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है लेबल्स का, ये अनटिक हुआ होगा ऐसे, तो इसको आपको नीचे वाले पेन के लिए टिक कर लेना है। और अगर एनीवन इज यूजिंग फ्री वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू तो उसको डबल पेन का ऑप्शन नहीं मिलेगा,
लेकिन उसके लिए मैंने ऑलरेडी गूगल क्रोम एक्सटेंशन शेयर किया हुआ है, जिससे आप अपनी स्क्रीन को मल्टीपल स्क्रीन में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी के पास मिस हो गया है तो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा ग्रुप में आज, तो उस क्रोम एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर किसी को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे गूगल खोलिए, मेरा गूगल स्क्रीन सबको विजिबल है। ओके। यहाँ पे लिखिए रीसाइज टैब एक्सटेंशन, ठीक है। जो सबसे पहले जो ऊपर वाला एक्सटेंशन आएगा इस पे आपको क्लिक करना है एंड ऐड टू क्रोम। ऐड एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन आपका लोड हो गया। अब आप इससे जो है अपनी स्क्रीन को मल्टीपल साइजेस में चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। और सर एक ये स्टॉक मैंने देखा है, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर। इस स्टॉक पे सभी लोग नजर बना सकते हैं, क्योंकि ये कई सारे जो एस इन्वेस्टर्स हैं उनके रडार पे है, और कई लोगों ने इसमें अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। कंटिन्यूस ट्रैंगल है। यस, अगर कहीं एंट्री मिलती है हमारे सिस्टम के हिसाब से, जैसे यहाँ पे एंट्री थी हमने मिस कर दी, हम वॉच नहीं कर पाए इसको, तो इसमें एंट्री एक छोटे पोजीशन से ली जा सकती है, क्योंकि मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं, जो एस इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या है, हमें रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है कुछ समय से, और कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जेपी, ये भी इलेक्शन से रिलेटेड स्टॉक ही है। लेट मी एक्सप्लेन। दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग हेलीकॉप्टर ऑन रेंट। तो नाउ चुनाव का रैली और ये ज्यादा होगा तो हेलीकॉप्टर्स का रेंट इनकम बढ़ेगा। तो अभी तो हम चुनाव मिस कर चुके हैं, लेकिन हम अगली बार के लिए पॉइंट को नोटेड कर सकते हैं कि शायद जो लास्ट ऑन रेंट, और अभी हाँ, लीक नहीं हुआ एक्चुअली, अभी तो चुनाव का जस्ट शुरुआत हो रहा है। यस, नेक्स्ट इसमें 2 मंथ्स जो बड़े इसमें इन्वेस्टर्स increase का हो गई। इन्वेस्टमेंट है वो दिसंबर से ही मैंने देखा, दिसंबर क्वार्टर से आना स्टार्ट हुआ है, यस और उसके बाद से लगातार अप ट्रेंड में स्टॉक। यस तो हमें ऐसी चीजों को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। यस आई थिंक दिस इज कॉल्ड सेक्टर टेलविंड यस, सेक्टर टेलमेंट इलेक्शन। इलेक्शन, राइट। बीटीएसटी का थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना सबको। बीटीएसटी एक्चुअली सर, हमारा जो बीटीएसटी स्कैनर है बेस्ड है, हम उसमें 2.30 और 3.20 के बीच का प्राइस और वॉल्यूम डिफरेंस को काउंट करते हैं। जिन स्टॉक्स में 2 से 3% का मूवमेंट अचानक से लास्ट 230 टू 320 आता है, वो स्टॉक्स वहां पे फिल्टर होके आते हैं। और अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं तो आप उसको वॉल्यूम प्रोफाइल से कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। मैं वॉल्यूम प्रोफाइल, अगर कोई फ्री वर्जन यूज कर रहा है तो मैं उसके लिए भी दिखा देता हूँ कैसे यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करने के लिए सॉरी, मेरे ख्याल से सर वो फ्री वर्जन में नहीं आएगा शायद। नहीं, फ्री में नहीं आएगा। फ्री में सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं आएगा। वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए आपको सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, जो मैं पर्टिकुलर देखता हूँ वो इस तरीके से देखता हूँ। सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल लोड किया एंड नहीं हुआ, लोड नहीं हुआ। लोड सर वो वीकली चार्ट है सर, यहाँ से टिक पर यस राइट, ये लोड हो गया सर। अब इसको अगर हम लार्ज करके देखते हैं तो अगर एंड तक हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं मिल रही है, कंटिन्यूस ग्रीन बार्स हैं और येलो बार्स एंड में भी नहीं आया है, तो वो स्टॉक मैंने देखा है कि नेक्स्ट डे 100% मैं कह रहा हूँ कि 100% ओपनिंग में 6 से 7% का मूवमेंट देता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे इसमें 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल में बहुत ही पुअर वॉल्यूम था सेलिंग का। येलो वॉल्यूम वाज वेरी स्मॉल एंड ब्लू वॉल्यूम वाज वेरी हाई। एंड नेक्स्ट डे आप देखें कि स्टॉक ने मूवमेंट दिया, और वो कंटिन्यू भी रह सकता है कई स्टेज में। अगर आपको एंट्री नहीं, एग्जिट नहीं मिल रही है तो यू कैन कंटिन्यू।
ऐसे ही जब जोमेटो आया था तो जोमेटो में भी सेम सेम कंडीशंस बनी थी। हमारे जो अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले वॉल्यूम उसमें आया था जोमेटो। जोमेटो दिया था और ये दिया था। हाँ, और उसके बाद उसने देखिए 8-10% का मूव दिया 2 दिन के अंदर। तो आप उसे वॉल्यूम प्रोफाइल से कंफर्म कर सकते हैं। फ्री वर्जन में सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे कर सकते हैं ये मैं देख लूंगा, अगर कुछ ऑप्शन होगा तो। विजिबल रेंज का तो होता है, कर सकते सर हैं। ये रेड लाइन कैसी है? रेड लाइन जो येलो ब्लू बार्स के बीच में आ रही है। हाँ यस, मैं आपको सुपर हीरो बंद करके बता देता हूँ। जैसे ये जो रेड लाइन है, दिस इज द पीओसी लेवल, यानी कि प्राइस ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे इस प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है स्टॉक। ओके। हाँ, रेड लाइन का मतलब है कि दिस स्टॉक इज ट्रेडेड। आप इसी को किसी भी वीक पे देख सकते हैं। अगर आप वीकली चार्ट लगाएंगे तो ये 1 वीक की कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये रेड लाइन का मतलब ये है कि इस प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है स्टॉक। ओके। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कितना अच्छा, मतलब लास्ट में अगर देखें तो लास्ट में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। यानी कि कुछ लोगों को यहाँ पे पता था कि ये स्टॉक जो है नेक्स्ट जाने वाला है या कोई न्यूज होगी, और लास्ट तक पूरे में केवल ब्लू वॉल्यूम है। येलो वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे सेलिंग वॉल्यूम तो वेरी वेरी लिटिल वॉल्यूम। तो आप इसको सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल को लोड करके BTST पे देखें और कंफर्मेशन करें। अगर आपको इस तरह का सिनेरियो मिलता है तो आप उसमें पोजीशन लें, और नेक्स्ट डे आपको विद इन डे 6 to 7, 8, 10% तक का भी डिफरेंस मिल सकता, गेन मिल सकता है। बट शर्मा जी, ये सेलिंग एंड बाइंग वॉल्यूम तो सेम ही होएगा ना, एक्चुअली अलग अलग कैसा हो सकता है? क्या सर? सेलिंग एंड बाइंग वॉल्यूम तो मैच होना चाहिए ना दोनों। नहीं, इसमें राजकुमार जी जो येलो है ना, येलो इज काइंड ऑफ की समवन इज डूइंग इंट्राडे आल्सो, बट दिस ब्लू इंडिकेट्स डिलीवरी इज हैपनिंग, मींस पीपल्स आर गेटिंग द डिलीवरीज, अच्छा, और the buyers are heavy or in that particular time of period. Time. ओके, मतलब डिलीवरी का है। ओके, ठीक है, Yes, अंडरस्टूड। delivery or the buyer is heavy. वॉल्यूम प्रोफाइल इज वेरी पावरफुल। आपको मतलब अगर इसको ठीक है, कहीं भी आप देखिए, यहाँ देखिए सेलिंग वॉल्यूम ना के बराबर है, और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस अप ट्रेंड दिया है। इसको आप किसी भी स्टॉक में ADX एंड सुपर हीरो के साथ भी जब एंट्री कर रहे हैं तो एक बार लोड करके चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ। अगर इस तरह का सिनेरियो मिल रहा है तो आपको कंटिन्यूअस 2-3 दिन 4 दिन अप ट्रेंड मिल सकता है। ये दीज और पैरामीटर्स जो है ये आपको आपकी जो पोजिशन है और ये थोड़ी सी कम हो जाएगी ट्रेड। आप महीने में 10 ट्रेड करते तो हो सकता है 6 कर पाए, लेकिन जो 6 करेंगे वो आपको बिग मूव देंगे और अच्छा मूव देंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा देंगे। बट ये हमारा एक्सेल शीट में आता है ये? सॉरी, मैं आस्किंग नहीं यू। नहीं, ये एक्सेल सीट जो है सर, ये आपको स्टॉक फिल्टर करके देता है। BTST के नाम से एक एक्सेल सीट है। मैं आपको नया इंटरफेस भी दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। अब जो आपको नया वो मिलेगा, लर्न प्रोफाइल जो मिलेगा, स्टॉप शेयरिंग एंड शिफ्ट स्क्रीन। ये URL है, जो HTML फाइल है वो बंद हो जाएगी, अब लॉगिन से आपको मिलेगा। ये learn.compoundingfunda.com के नाम से URL है, आपको इसको लोड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ए वेबसाइट। ये अभी टेस्टिंग में चल रहा है, तो मे बी की टेस्टिंग की वजह से स्लो हो या कुछ नहीं हो गया लोड। ठीक है सर, यहाँ से आप ये लॉगआउट का मैं लॉगआउट कर देता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इस पे जाएंगे तो आपको साइन अप करना होगा। अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए लाइफ टाइम है ये। यहाँ से जैसे आप साइन अप करेंगे, ईमेल नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड बनाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे एंड साइन अप। उसके बाद आपके मेल पे कंफर्मेशन कोड जाएगा, लिंक जाएगा, आप उस मेल आईडी को कंफर्म कर देंगे एंड आफ्टर दैट आप लॉगिन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और आपकी शीट खुल जाएगी। इनवैलिड पासवर्ड, maybe something wrong. ये यहाँ पे स्क्रीनर है, और जो BTST स्कैनर है, दिस इज इन द एंड ऑफ द
ठीक, दिस वन BTST। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन मैच होगी तो 3:20 पे आपको देखना है केवल इसको। ये 3:20 पे 21 पे आपको स्टॉक देगा और रेगुलर बेसिस पे भी नहीं मिलेंगे। One or two time in a week you will get stock like this. स्टॉक लाइक दिस। But those stock you need to close next day or day after next day. Means those are the trade for hardly 2 or 3 days with 6 to 10% of gain. Even next day you can you need to exit if it is exit as per our exit criteria. Sometime it may hit your stop loss also. BTST doesn't prove that it is a sure short gaining trade. तो ये जो इसमें स्टॉक आते हैं दैट इज हैविंग दिस क्राइटेरिया ऑफ वॉल्यूम एट लास्ट मोमेंट व्हाटएवर यू Yeah, शोड volume of last 45 minutes actually. तो वॉल्यूम सर मेरा एंड एक क्वेश्चन, प्राइस वॉल्यूम एक्शन जिनमें लास्ट 45 मिनट्स में हुआ है वो स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाते हैं। सर ये बोथ आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं? Only केवल positive पॉजिटिव, आएगा. ओनली पॉजिटिव। ओके सर। नेगेटिव अगर आपको करना है और शॉर्ट सेल में करना है तो दिस वन द स्कैनर वन वे बियर इट, बट इट इज फॉर ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस। अगर आपका ट्रेड कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर आपको कंटिन्यूअस एग्जिट नहीं मिल रही है उसके अंदर तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज आप इसे 9:30 पे देखेंगे तो 9:30 पे ये वन वे बियरिश में जो स्टॉक आते हैं और अच्छे शॉर्ट सेल मिलते हैं इसके अंदर। और जस्ट लाइक दैट कि जैसे वन वे बियरिश है इट इज वन वे बुलिश, but both scanner are for the intraday traders. But Bhupendra ji, how we can sell the stock we buying today, because we need to take delivery right before we sell. No, it is नहीं, not. Which intraday के लिए आप short कर you सकते are हैं। using? No, BTST. I'm No, which actually the broker you are using for that? Actually, Zerodha and this is having problem. But if you are using this Angel One or Motilal Oswal, they are providing you to sell next day. This Zerodha, Friars and other things, those are free of charge kind of things. They are not allowing you to do same. But if you are using Angel One or Motilal Oswal or I think Axis also giving that, and ICICI Direct is also providing this facility. Oh, without taking delivery, you can sell. Yeah. Okay. Okay, ji. But Bhupendra, Zerodha mein also you can sell, but you don't get a credit money. You get next day credit money, but you can sell. Yes. Now no broker can give the credit on the same day, next day. If you buy today and sell tomorrow, no broker can give you the credit. That is the SEBI guideline. But we Okay. can sell in Zerodha. Except trade to trade, they will not permit. Other than trade to trade, they are permitting. Yeah, thanks. और सर इसके बारे में बताता हूँ, जैसे डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो यहीं पे आपको एक ट्रेडिंग लॉग का भी ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने लॉग ट्रेड को मॉनिटर कर पाएंगे या एंट्री कर पाएंगे कि आपने क्या किया। अभी वो अंडर डेवलप है, विद इन 1 वीक आ जाएगा। JPS जी, ये जो आपका अभी अपना अलर्ट आता है बुलिश एंड बेरिश, यस सर, वो अभी वैलिड है क्या? बिकॉज सेम स्टॉक का आता है डीमार्ट मतलब हाँ सर, मैं आपको उस पर क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। एक्चुअली उसमें मैंने अभी केवल 30 स्टॉक्स ऐड किए थे, निफ्टी 200 के स्टॉक्स में से 200 से केवल 30 स्टॉक्स ऐड किए, इसीलिए वो केवल 30 स्टॉक्स पे दे रहा है। एक्चुअली इट वाज अंडर द ट्रायल कि वो सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस हफ्ते में उसमें 200 के 200 स्टॉक ऐड कर दूंगा और इट इज 100% परफेक्ट एंड वर्किंग फाइन। तो आपको निफ्टी 200 के अलर्ट वहां पे मिल जाएंगे। वो आपको कुछ स्टॉक्स के इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो उसके अंदर केवल 30 स्टॉक्स अभी ऐड किए हैं अलर्ट में। सर BST का जो बोल रहे हैं उसका अलर्ट आ सकता है, मैसेज आ सकता है रादर देन मतलब वो देखने से, शीट खोल के देखने से 3:20 को ऐसा मैसेज आ सकता है, पॉसिबल है? सर हम ट्राई तो ये कर रहे हैं कि ट्रेड भी हो जाए। हाँ, तो जितना इजी होगा उतना अच्छा होगा ना। यहाँ पे जो अभी ये जो साइट डेवलप हो रहा है ना, यहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग जनरल है ना वो भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। Means if you are doing any trade and you will put
You need to monitor anywhere. यहीं पे आपको ट्रेडिंग जर्नल भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ट्रेडिंग जनरल मिल जाएगा. and it will be private property of you. Whatever data entry you will do, we are not able to see that. So that privacy will be there. Unless and until you will say you will not share your password with anyone else, nobody can access your trading journal. Yes. So you will get your trading journal also here. तो नो अगेन आई जस्ट गो बैक टू माय क्वेश्चन. तो शर्मा जी जरा देख लीजिए, अगर आपका इसमें बुलिश एंड बेरिश के अंदर बीएसटी का अलर्ट आ सकता है, दैट विल हेल्प अस. सर मुझे आपकी अच्छी बात ये लगती है कि आप ऑटोमेशन में विश्वास रखते हैं, और आई एम ऑल्सो, मतलब मुझे ऑटोमेशन पसंद है. अगर कोई भी चांसेस कहीं भी मिलेगा तो आई विल डू डेफिनेटली. आपने देखा होगा इतनी सारी चीजें मैंने ऑटोमेशन में लेके आया हूँ. अदरवाइज हम चार्टिंग पे जाते थे, अलग अलग स्कैनर को स्कैन करते थे, सारे काम करते थे, वो भी रियल टाइम नहीं होते थे. अगर कुछ भी ऐसा मिलता है कि हम इसको ट्रेड को हम ट्रेडिंग पे टेलीग्राम पे ले जा सकते हैं तो आई विल डेफिनेटली ट्राई. प्लीज, थैंक यू, थैंक यू. That's all from my side. Bhupender, yeah, Bhupender ji, still I have confusion on using this superhero from the Excel sheet, the list, right? From the Okay. superhero, so how we can use that list of stocks for short term? So how we can filter and how can we use that one for short term trading? Okay. So, Karthik, what is your rule for trading actually? First, we need to start from that only. What is your rule? Means what kind of risk you are going to take prior to go for a trade? Means you have defined any stop loss, or you just want to go directly with the trade which is coming into the screen? What is your basic rule for trading actually? Yeah, whatever you told earlier, I'm following that, like AMA, and then it's not But extend. if it is, yeah, so if it is extended by 5, 6, 7%, then we need to ignore those trade. See, in our screen every day we are getting more than 50 to 100 tradable ideas daily. So whatever suits your entry criteria, means I am preferring that I will not trade any idea if on hourly chart stock is having a risk of more than 2%, or daily chart more than 3%. So first you need to define that only, then you can select whatever stock is. Though again, if it is making a new life high and you are convinced that some positive news are there behind that stock, then you can take risk entry also. Then try to keep 50% and 50% keep for the average down. I am also believing in the average down also. If I am getting some stock at new high and I am sure that it is going to be correct, but what if it will not correct? So I may miss that opportunity. So I make 50% tranching in that time, and when it comes down, I add 50% more. Or you can. Okay, ji. Yeah. Okay. Any more query or doubt? सर कल आपने एक आइडिया वोडाफोन का वो भेजा था. Yes. सर वो थोड़ा समझा पाएंगे? तो वो जस्ट एक आइडिया वोडाफोन एपीओ ला रहा सी. आइडिया वोडाफोन जो कंपनी है वो डूबा क्यों है? बिकॉज ऑफ द जो लोन्स है उस कंपनी के ऊपर और जो उसके एक्सपेंडिचर्स है वो इतने ज्यादा थे कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है या कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है. तो अभी वो कंपनी ने जस्ट एपीओ लाने का प्लान किया है. नाउ वेयर दिस कंपनी विल यूज दैट मनी फ्रॉम द एपीओ. यदि सर वो एपीओ का सही यूज किया, एपीओ में जो पैसा आ रहा है और वो सही यूज किया, तो ये कंपनी टर्न अराउंड हो सकती है. और जैसे सुजलोन में लोगों ने 4x 5x बनाया, सुजलोन 4 रुपए 6 रुपए से आज 40 रुपए पे आ गया है. सिमिलर वे वोडाफोन आइडिया कैन आल्सो गो अप टू 55-60 रुपीज. So it is again a risky bet. So APO is like IPO only. You need to fill a form. If you are lucky enough, you will get this share traded transferred into your account. It is a risky bet. If you are finding that okay मेरा 15,000 रुपया गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, so एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें. नहीं सर, एक चीज और मैं पूछना था सर, जैसे हम अप्लाई करते हैं, मतलब मैंने आज तक आईपीओ अप्लाई नहीं करा है, तो हम करते हैं तो मतलब वो तो एट अ टाइम मतलब वो डिडक्ट हो जाएगा ना? पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आपको अलर्ट होगा
तो आपको शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, अदरवाइज वो मिल जाएगा, आप पैसा वापस आ जाएगा। पैसा वापस आ जाएगा। तो सर पूरा आता है या फिर कुछ कट का आता है? 100% रिटर्न होगा। अच्छा सर, टीसीएस का सर अभी क्वार्टर का वो आया है, रिजल्ट काफी पॉजिटिव आया है, मैंने Every देखा था। quarter they are providing good results only. क्या सर? TCS ये सारे ना बड़े हाथी हैं, ये बहुत धीरे धीरे चलेंगे, यस सर। बट मतलब इनसे आपको एक साल में 10% 12% से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते आप ये सोचोगे कि यार TCS का शेयर 4,000 पे अगले महीने 8,000 हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है TCS के लिए। यस सर। ओके Idea सर। is one kind of risk. Those who are able to digest risk can go for. I will also go for it, but with a limited risk. First, I will prefer to go with market. I am just trying to set alert in my trading view. If the stock is coming near to 10, I am going to buy it. Because this APO is also coming on the range of 10 to 11. So if we are getting from the market at 10 rupees, prefer to buy from market. इसमें एफपीओ में अप्लाई करना रिकमेंडेबल नहीं क्या भूपेंद्र जी? Pardon? एफपीओ में अप्लाई करना रिकमेंडेबल नहीं है क्या? APO recommendation means, sir, it is just a risk means, but you need to take calculation. See, Idea Vodafone is having a lot of this, what we can say, the depth is more, and they are not able to pay the interest or the debt. So what they are planning, they are planning to get some money from the market by issuing the fresh equity. After getting this 18,000 worth of rupees, where they are using, that is not known to anyone. Whether promoter will use this money to repay the debt, or whether they are going to improve the service or improve the facility. See, now currently many of the Idea users are shifting to Airtel or Jio. So because of the service. So where this 18,000 crore rupees will be used by Idea will be a question. If they will use it to improve the service or improve the facility, then it can become a multi-bagger. Or if they are going to use only to reduce the debt and they will not going to improve the service, again the Idea user will shift to the Jio or Airtel. So nothing will be happen with the Idea stockholders. It will be only promoter will get benefited. But if they are using this 18,000 worth of rupees to improve the service, that we need to see. That will come in detail when they will officially release this FPO. But the 10 rupees की फेस वैल्यू पे अगर 12 रुपए में शेयर मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड डील. Still they are putting value of 10 to 11, not even 12 rupees. जो APO का जो प्राइस डिक्लेयर हो रहा है, it will be in between 10 to 11 rupees. इसको अप्लाई कैसे करना है? आईपीओ जैसे ही अप्लाई करना है ना? IPO जैसे ही APO को अप्लाई करना है. ओके. इवन उससे अच्छा है आप ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट लगा दीजिए. इफ स्टॉक प्राइस इज कमिंग बिलो 11 रुपीज, गिव ए अलर्ट. हम मार्केट से 11 रुपए पे लेके बैठ जाते हैं. APO में अप्लाई करना है, मिलेगा नहीं मिलेगा. So you can take risk from there also. Correct. Is it for existing shareholder or new share? Can No, also it's a new equity is coming into the system. Promoter has added 2,000 crore worth of equity, and now they are planning to get 18,000 crore worth of equity from the market. So they are increasing the equity in the stock. And this is the biggest APO in the Indian market actually. Idea will recover, sir. I am using since 20 years. The Idea can change. I still believe in. नहीं भाई, अभी जो प्रमोटर है ना सर, आदित्य बिरला ग्रुप, they are very pioneer in recovering the loss making company to the profit making. Yes. तो ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ लिया है वर्ल्ड वाइड, लाइक नोवेलिस लिया इन्होंने यूएस में, और लॉस मेकिंग थी, उनको उसने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया. उस जमाने में एलएनजी सीमेंट को लिया था, उन्होंने वैसे किया उसको. तो
हम इसको ट्रैक करना So चाहिए that और is ये a risk. See, what I am telling is only risk. Either 15,000 will become 5,000 rupees or 50,000 will become 60,000. What more we are going to lose? But the face of Aditya Birla Group is different thing. yes. So we can trust on the promoter also. And if they are putting money, if you see the recent development, they invested into the company as a promoter, and they got a preferential issue at 14 rupees 85 paisa. And in FPO, they are providing at 11 rupees. So a promoter is buying stock at high price, and in FPO, they are providing at low price. Means they are confident that they are going to make a turnaround story in Yes. Vodafone Idea. But we have to take risk as per our capacity. It could be 5,000 rupees worth of risk, or 10,000 or 1 lakh rupees. Whatever portfolio you have, you can take risk according to that. सर वन मोर थिंग ऑन स्क्रीनर. एक्चुअली अभी जो कार्तिक सर ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे कुछ मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है ऐसा ना हो, कि कुछ लोग जो स्क्रीनर में स्टॉक आ रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग लाइक ए रिकमेंडेशन. हेलो. Yes, sir. Yes. मतलब सम पीपल आर ट्रीटिंग लाइक ए रिकमेंडेशन, जबकि ऐसा नहीं है. वो स्क्रीनर जो है आपको 5,000 स्टॉक के वर्ल्ड से आपको 100 स्टॉक 50 स्टॉक स्क्रीन करके दे रहा है, जो आपके क्राइटेरिया पे फिट बैठ सकते हैं. दैट्स इट ओनली. आपको जो भी स्टॉक में एंट्री लेना है, वो स्टॉक में आप चेक करिए कि आपका एंट्री क्राइटेरिया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. जो एंट्री क्राइटेरिया हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सुपर हीरो के साथ, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन यूज इट. अदरवाइज आपके पास कोई और एंट्री क्राइटेरिया है देन यूज दैट. बट टेक ट्रेड ओनली आफ्टर कंफर्मिंग योर एंट्री क्राइटेरिया. दिस इज नॉट अ टिप. ये टिप नहीं है कि आपको 50 स्टॉक मिल गए तो 50 स्टॉक सुपर हीरो में आए हैं और आप उसको खरीदना है. ये ऐसा नहीं है. Is that clear, sir? Yes. Karthik sir? Yeah. Yes, GBG. Yeah. Understood, Yeah. sir? Yeah. Just recommendation. Yeah. हाँ, एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई लोगों का आ चुका है मेरे पास, व्हाट्सएप पे भी पर्सनल में आ चुका है कि इतने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, उनको कैसे लेना है, इतने कैसे ले सकते हैं. वो ऐसा नहीं है. वो स्टॉक आपको केवल 5,000 स्टॉक्स की दुनिया में से कुछ स्टॉक्स छांट के दे रहा है, जिनमें कुछ समथिंग हो रहा है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है, हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, एडीएक्स इंप्रूव हो रहा है, डिमांड इंडेक्स इंप्रूव हो रहा है. लेकिन स्टिल आपको पोजीशन जो बनानी है वो आपको सारा वर्कआउट करने के बाद ही बनाना है. आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, चार्टिंग पे नहीं जाना है, किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं जाना है. आप यहाँ पे चेक करिए, एक ही जगह पे उसको करिए. जैसे मैं मोस्टली ट्रेडेड जो मैं स्टॉक ट्रेड करता हूँ, आई ट्रेड ऑन 200 MA सपोर्ट, और 90% केसेस में वो स्टॉक हिट होते हैं. तो वो मेरा एंट्री क्राइटेरिया है. मैं 200 MA पे सपोर्ट जब भी स्टॉक लेता है और वहां पे मेरे को एडीएक्स डीआई एंड वॉल्यूम ऑल आर इंक्रीजिंग में मिलते हैं, जो कल्पेश सर की जो स्ट्रेटेजी है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटेजी पे मैं ट्रेड करता हूँ और वो एब्सोल्युटली वर्क करती है. और एक साइकिल बनाया हुआ मैंने कि जैसे आई एम वेटिंग फॉर डाउनफॉल, पीपल आर वेटिंग फॉर अपवर्ड, बट आई एम वेटिंग फॉर डाउनफॉल. कि डाउनफॉल होगा तो मुझे 200 MA पे ज्यादा स्टॉक मिलेंगे एंड आई विल ट्रेड मोर स्टॉक्स. और उसके बाद जब वो अपवर्ड जाएगा, एक्चुअली अगर आप मॉनिटर करें तो हर मार्केट का एक साइकिल है. मार्केट 10-15 दिन ऊपर चलती है, 2-4-6 दिन नीचे आती है. तो आप किस साइकिल में फंसे हुए हैं? आप ऊपर खरीद के नीचे देखने वाली साइकिल में फंसे हुए हैं, या नीचे खरीद के ऊपर वाली में फंसे हुए हैं, या आप जो स्टॉक भाग रहे हैं उनमें उनको एंट्री कर रहे हैं? वो आपको अपना एंट्री क्राइटेरिया बनाना है. मार्केट फॉल में भी बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो सर्किट लगते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या? तो वो सारे एंट्री क्राइटेरिया अगर आपके मैच होंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है 100% प्रॉफिटेबल होगी. जेपीएस आई आल्सो फॉलो आपका जो स्टाइल है, थोड़ा Yes, आप sir. 2-3 एग्जांपल बताएंगे आपने जो किया है, तो सबको थोड़ा बेटर रहेगा. हाँ, यस, श्योर सर. Where is my trading view? पहला तो 200 MA का एक्सेल अपना आप एक्सेल शीट से लेते हैं ना आप? हाँ सर, इसी से लेते हैं, स्पिनर से. वहां से चालू करेंगे ना 1-2 स्टॉक को? हाँ बिल्कुल. Yeah, JBG, if possible, please explain in English.
Yeah, that I Sorry. will convert it whenever you are having any issue. तो ये I will explain. Okay. this is a big problem for me, sir. Oh, you put AI, you put AI converter in between. Is it possible? In recording, we are using that actually. और भूपेंद्र जी और एक पॉइंट था, वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में सेल किया ना तो वो परचेज करने को देता नहीं. इज इट रियली हैपनिंग विथ मी और इट इज नॉर्मल सेम स्टॉक? सर मैं उसमें मतलब ऑफ द टॉपिक कुछ कहूंगा, आप उसको समझिएगा. मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा वर्स्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट है मेरा, दैट इज आईसीआईसीआई डायरेक्ट. हर स्टॉक को बेचने से पहले उसमें ओटीपी चाहिए होता है. मे बी वो उनका कंसर्न हो कि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है. वो सेम डे में आपको टोटल अमाउंट का 5% भी यूज नहीं करने देता. अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं देन स्विच फ्रॉम आईसीआईसीआई. आईसीआईसीआई यू कैन यूज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ओनली. ये बहुत बड़ा इशू है आईसीआईसीआई के साथ. जबकि अदर ब्रोकर्स जो है वो लगभग अप टू 80% 90% तक यूज करने देते हैं आपको अमाउंट सेल करने के बाद. Am I right, sir? Yes. यू राइट, वेरी मच राइट. तो मैं एक्चुअली सेल किया, उसको परचेस करने का था, उसने दिया ही नहीं परचेस करने के लिए. वेयर जीरोधा में इट गिव्स इजीली एंड यू गेट अ मार्जिन आल्सो, गेट बेटर मार्जिन इफ यू परचेस सेम. इन जरोधा, इन मोतीलाल ओसवाल सर, आप मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ. ठीक है सर. ये 200 एमए सपोर्ट है सर का स्पिनर है. अगर आप यहाँ से चार्ट खोल लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो स्टॉक है वो 200 एमए के आसपास सपोर्ट ले रहा होगा. ये देखिए सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ट्रेडिंग स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर. Yes, sir. Yes. It is just crossing the 200 MA. इट मींस स्क्रीनर में जो आता है एक्सेल शीट में, इट इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप फॉर 200 एमए, वही आता है स्टॉक. Yes, it Sir, is both. crossing 200 EMA. फ्रॉम डाउन टू अप. Yes. इसमें वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं कि बस प्राइस देखते हैं? मैम आप जितने फैक्टर्स लगा सकते हैं लगाइए अपने. नहीं, स्क्रीनर में जो आप दिखा, स्क्रीनर में जब नहीं, आता है इसमें इस जो 200 एमए सपोर्ट जो स्क्रीनर है दैट इज ओनली टेकिंग 200 एमए सपोर्ट. ओके. और सर सुपर हीरो में क्या इंडिकेट करता है इंडिकेटर इसमें? सुपर हीरो में एडीएक्स, वॉल्यूम, प्राइस, बहुत सारे 3-4 फैक्टर्स हैं जिसको इंक्लूड करके वो स्टॉक को स्क्रीन करता है. आपने अगर देखा होगा सुबह सुपर हीरो के स्टॉक्स 1 आवर चार्ट पे देखे होंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में एडीएक्स, डीआई इंक्रीजिंग मिलता होगा. यस सर. सारे ये डेली टाइम फ्रेम पे रहते. सुपर हीरो 200 मूविंग एवरेज, ऑल ऑफ देम आर इन स्क्रीनर. ओके. 200 EMA जो 200 का मनीषा जो ये स्क्रीनर है, that will be only on daily chart. ओके सर. So you can track on the daily basis. And simple, this 200 EMA cross down will be your exit. If you are using Okay, this sir. as an entry. So when this stock it, will close below this 200 EMA line, that could be your simple exit. अगर आप इतना स्टॉप लॉस दे सकते हैं कि 298 पे एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे 290 तक ले सकते हैं 8-10 रुपए का स्टॉप लॉस, तो यू गो फॉर इट. ओके, गॉट इट सर. और अगर आप इसमें सुपर हीरो इंक्लूड कर लेंगे तो आई थिंक आपका स्टॉप लॉस और कम भी हो जाएगा. याद है कि इसमें आपका सुपर हीरो में भी एंट्री बन रहा है लगभग. कॉम्पटन ग्रीव्स
ADX is stable and demand index is decreasing. 21.58, 21.4, 90, 21.20. इस दिन थोड़ा सा मे बी पॉसिबल कि ये डिमांड इंडेक्स जो गिरा है वो इस वजह से गिरा हो कि कुछ लोगों ने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की ब्याज पे भी एंट्री बनाया होगा, तो मे बी दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये, इस वजह से लोगों ने किया, तो डिमांड इंडेक्स हो सकता है इस वजह से गिरे, तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। ओके हाँ, ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे कि ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लोग ट्रेड करते हैं यहाँ, तो मे बी दे बुक देयर प्रॉफिट फॉर देयर, तो जिस वजह से डिमांड इंडेक्स गिरा है। जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाए तब एंटर कर सकते हाँ, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है, फर्स्ट इज ओवर देयर, सेकंड फरवरी एंड सेकंड इज 4th मार्च, तो हो सकता है यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये जाए। एंड वन मोर थिंग कि क्रॉम्पटन ग्रीप के जो रिजल्ट्स हैं वो भी इस क्वार्टर में अच्छे आते हैं, जो अब ये जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, दे विल बी प्रूव, जो कि क्रॉम्पटन के बहुत सारे समर प्रोडक्ट्स बनाता है, कूलर, एग्जॉस्ट एंड AC एंड ऑल दिस थिंग्स एंड मोटर्स, और जो मोटर्स वगैरह जो होते हैं या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो गर्मी में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा खराब होते हैं, तो सभी इलेक्ट्रिकल कंपनीज की सेल्स बढ़ जाती हैं। तो मे बी सम पीपल हु नो दिस क्राइटेरिया, दे आर बाइंग दिस स्टॉक फॉर, आपने देखा होगा कि रिजल्ट आने के बाद जो बाई किया आपने, स्टॉक गिर गया, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट किया, दे विल बुक देयर प्रॉफिट एट दिस टाइम, और नोवाइस इन्वेस्टर विल एंटर एट दैट टाइम। करेक्ट सर। सेम इन वन मोर कूलर कंपनी सिम्फनी में भी आप अगर देखेंगे तो सेम क्राइटेरिया है। सिम्फनी मैंने जनवरी में आइडेंटिफाई किया था, एंड सिम्फनी में भी आप देखिए, सिम्फनी मैंने यहाँ पे 960 एंड अबव क्लोज पे अपने ग्रुप पे शेयर किया था, जो मेरा मोतीलाल ओसवाल का ग्रुप है, कि अगर यहाँ को क्रॉस करता है देन यू बाई, उसने क्रॉस नहीं किया और क्लोजिंग नहीं दिया तो वो डाउन हुआ, और मैंने फिर यही कहा था कि ये मार्च में जब सेल बढ़ेगा, जब भी आपको रिवर्सल मिले तो आप इसमें एंट्री लीजिए, और सेम देखिए यहाँ पे 22 मार्च से यहाँ तक, इट मीन्स कि इसके रिजल्ट अब जो आएंगे मार्च क्लोजिंग के रिजल्ट, दे विल बी बम्पर, क्योंकि जो कूलर का मैन्युफैक्चरिंग है या जो सेल्स है जो कंपनी लेवल पे है, वो अप टू मार्च मैक्सिमम 90% क्लोज हो चुका होता है। मार्केट जो बेचती है, वो कंपनी जो बनाती है, वो अप टू मार्च क्लियर करके अब मार्च के बाद जो मार्केट में आता है तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो नए इन्वेस्टर हैं या इन सब चीजों को कंसीडर नहीं करते, वो मार्च के बाद रिजल्ट आने के बाद क्लोज करेंगे, और जो उन्होंने यहाँ पे खरीदा हुआ दे विल स्टार्ट प्रॉफिट, और स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो आपको इंडिकेशन एंड इसके अलावा मार्केट का साइकोलॉजी एंड साइकिल भी समझना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसे डिस्कस करते करते। और रिवर्सल स्ट्रेटेजी के लिए मेरे 2 फेवरेट स्टॉक हैं, आपको जब भी मिले आप इसको ट्रेड करिए। मैं इसको यहाँ पे ट्रेड कर चुका हूँ, यहाँ पे भी ट्रेड कर चुका हूँ, टाइटन को यहाँ पे भी ट्रेड कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया आपका 7, 8, 10%, एंड अगेन वेटिंग फॉर दिस लेवल 3570 का मैंने ऑलरेडी ट्रिगर लगाया हुआ है कि 3570 में बाई करना है, एंड दिस आई विल ट्रेड दिस, एंड सेम इन TI इंडिया। आप इस तरीके के अपने स्टॉक की लिस्ट बनाइए, किन स्टॉक्स में एक पर्टिकुलर मूव मिलता है। मैं TI को यहाँ पे भी ट्रेड कर चुका हूँ, भूपेंद्र सर को पता है, यहाँ पे भी ट्रेड कर चुका हूँ, यहाँ पे भी ट्रेड कर चुका हूँ। एवरी स्विंग ऑफ TI एंड टाइटन आई ट्रेड। देखिए तो मैंने साइडवेज मूवमेंट में जैसे नीचे आ रहे तो खरीद रहे, ऊपर जा रहे तो बेच रहे, ऐसे तरह। यस मैम, देखिए मैंने रिवर्सल पॉइंट अपना लाइन खींच के बनाया हुआ है ना, एंड इवन टाइटन एंड TI आई हैव स्टार्ट बाइंग इन ट्रांचेस। मैंने यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया TI को और टाइटन को, दोनों को। So अगर आप यहाँ से यहाँ तक your own defined universe of stock also. Even if you have 15 or 20 stock in your watch list, and you be with those 15 or 20 stock for a long time, and you can generate money regardless of going for any kind of screener. Like even you will get 2 rupees. I know one person who is trading for 1 rupees only. Yes, sir. BBL is same. Yeah.
No, even he is doing in NHPC, SJVN. What he is doing, he is buying stock worth of 10,000 or 15,000 quantity, and at a movement of 1 rupees, he is simply exit. And this kind of stock you will find over there. Yeah. In oversold screener. This is the oversold screener. यहाँ पे आपको मिलेंगे स्टॉक्स ये. Now Cipla will give you the return soon. Yes. Find the support and support level. ये I think this is the support level, best support level है. बाकी भूपेंद्र सर explain करेंगे. I think this one is good, sir. Yes. So currently is also meeting. This could be the worst, but prior to that, this small green candle is there. Or instead of buying in single short, buying in tranches and in a zone. जैसे ये हाई मार्क कर लिया आपने सपोर्ट का और यहाँ पे, तो इस जोन के अंदर बाई करिए. कुछ 1323 पे बाई कर लिया, कुछ 1285 पे बाई कर लिया, और स्टॉप लॉस जैसे 200 में सपोर्ट नीचे आ रहा है यहाँ पे, अगर इस तरह का नियर सपोर्ट मिलता है तो उसके नीचे क्लोज होता है, देन योर स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड. और इस स्विंग को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यह है कि आपका जो स्टॉक है वो लॉन्ग रन में अप ट्रेंड में होना चाहिए. आपको स्विंग कभी भी उस ट्रेड में नहीं करना है, उस स्टॉक में जिसमें स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है. जैसे स्टॉक का ट्रेंड यहाँ पे अपवर्ड है, तो उसी के स्टॉक को ट्रेंड को आपको स्विंग को ट्रेड करना है. ये 2-3 चीजें हैं जो आप ओवरसोल्ड स्टॉक में कर सकते हैं. कल्पेश सर है आज नई स्टॉक में सर मीटिंग में? नहीं है. हाँ, कल्पेश सर का एक सेशन रखवा दीजिए सर, रिवर्सल स्ट्रेटेजी, ही नो वेरी वेल. So if you see the chart of this Cipla, na, yes, weekly and monthly chart is very strong. Yes. Only daily chart you will get this GMMA merge and everything, and will start move. और अगर आप बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर हैं सर, तो ये 200 MA की लाइन जो आ रही है, आप इस पे बाइंग ट्रिगर लगाइए अपना 1270 पे. जिस दिन ये 1270 टच करेगा, आप इसको मार्क कर लीजिए आज चार्ट को. ये 100% सेकंड डे आपको 5 to 6% का मूव देगा इफ ही टच 200 MA. शर्मा जी, ये जो रिवर्सल का बात कर रहे हैं अपना एक्सेल में नहीं है ना इसका इंडिकेशन? हाँ सर, है ना ओवरसोल्ड स्टॉक. दिस वन ओवरसोल्ड. ओके, तो ये मतलब रिवर्सल के लिए यूज कर सकते हैं. हाँ, ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में जो स्टॉक्स हैं जिनमें रिवर्सल आने की उम्मीद है, आप उनमें छांटिए. और ये सिप्ला हमने यहीं से लिया ना, आप उनमें सपोर्ट मार्क कीजिए एंड सबके सपोर्ट लेवल पे आए. लेकिन अगेन वन थिंग, जो कार्तिक सर का क्वेश्चन था वो यहाँ पे भी बन सकता है कि जो स्टॉक उसमें आया हम खरीद ले गया. नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने यहाँ पे देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये इसका रेजिस्टेंस था, एंड यहाँ से इसने दोबारा सपोर्ट लिया. सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट. ये मैंने रेजिस्टेंस एरिया इसका मार्क किया और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रही है 200 MA की. देन दिस इज द परफेक्ट बाइंग जोन ऑफ सिप्ला. अगर आपको 1275 मिलता है, देन गो फॉर इट. और आप उसके बाद भी रिस्क लेना चाहते हैं, देन वेट फॉर रिवर्सल. रिवर्सल के लिए फिर अगेन वही आप करिए कि आपको RSI एंड ऑल दिस थिंग आर गेटिंग इंक्रीज. जैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग चल रही है, 81 से RSI 68, 57, 41 से DI 40, 37, ADX 34, 35, 36. अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल में सब चीजें इंक्रीज मिल रही है, देन यू विल मेक इट डबल श्योर. वो आप अपना क्राइटेरिया जितना ज्यादा रिफाइन करना चाहते हैं, जितना ज्यादा कम ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे वो इट्स अप टू यू. अभी दो क्वेश्चन है. एक तो SMA आप कौन सा यूज, बहुत SMA है, कौन सा यूज करते हैं आप? सिंपल SMA सर, सिंपल मूविंग एवरेज. और दूसरा अपना डिस्कशन वाला कि ये जो अपना ADI एंड ऑल दिस थिंग्स हम लोग टेबल में देंगे, तो कुछ हो रहा है उसके ऊपर? सर, उसको टेबल में देने से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो 5 सेशन का मैक्सिमम हो पा रहा है, लेकिन जब आपको बैक टेस्ट करना है तो फिर वो 5 टेबल से ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं. या तो मैंने जो प्लान किया वो ये किया कि हम इसको एज इट इज बना रहने देते हैं. एक सुपर हीरो विद टेबल एक अलग इंडिकेटर दे देगी, तो 2 इंडिकेटर्स का एक्सेस दे देंगे, जिसको जो मर्जी है यूज करे.
आज का भी ओके है ना टू फाइंड द ट्रेंड बेसिकली? हाँ नहीं, वी विल कीप बोथ। ओके गुड, हाँ थैंक हम यू। दोनों को रखेंगे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, क्योंकि शर्मा ट्रेडिंग जी, व्यू को तो हम होस्ट करने का पैसा दे ही रहे हैं ना सर, एक शर्मा जी, करेगा तो। बेसिक क्वेश्चन, एक जी बेसिक क्वेश्चन है सुपर हीरो पे। जी आपके बताइए। प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि जैसे वो जो लाइन है, रेड होने के बाद वी शुड एग्जिट इट, तो ये नहीं सर, रेड होने के ऐसा बाद क्या? एग्जिट नहीं करना सर, आफ्टर क्लोजिंग बिलो द लाइन। 200 EMA के बिलो होता है तो एग्जिट करना है। सर आपका क्वेश्चन सुपर हीरो के सुपर बैंड ये एएमए बैंड के लिए है या 200 एमए के लिए? सुपर हीरो। सुपर हीरो है तो 200 एमए बैंड तो है ही नहीं ना सर उसके अंदर। अगर सुपर हीरो बैंड है देन एग्जिट, अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया है 1448 पे, देन योर एग्जिट ट्रिगर ओवर हेयर क्लोज होने के बाद ओके, 1460 पे, जब बैंड के नीचे क्लोज हो, तो क्योंकि हमको मोस्ट वही फॉलो करना है। यस आपको क्लोजिंग का वेट करना है। ओके, रेड रेड होने का वेट करना है। हाँ रेड सर बीच में कई बार होगा, जैसे यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट नहीं मिला है और आप बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर है और अच्छी अच्छी प्रॉफिट में है, देन गो फॉर इट। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है और आप यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, आपने 1386 पे बाई किया हुआ है और आप अच्छी पोजीशन में है, 1437 का प्रॉफिट मिल रहा है, देन व्हाई वेट फॉर क्लोजिंग, गो फॉर योर एग्जिट। वेट कर सकते हैं अपन। हाँ टिकट कर, और वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी देखिए सर जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उसी के हिसाब से एक्ट करेगा ना। तो इस चीज को हमने जो रेंज का चार्ट है, लाइक डेली चार्ट है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, तो हमारी यस जो सर, स्ट्रेटेजी है मंथली के हिसाब से, उसके हिसाब से हमको कलर देखना है ना। Yes, यस yes. सर हमारी स्ट्रेटेजी सेम है, रादर यू आर ए इंट्राडे ट्रेडर, यू आर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यू आर ए मीडियम टर्म ट्रेडर, यू आर ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर। Even if you are using entry on 5 minute chart, your exit should be on 5 minute chart. 5 मिनट चार्ट। हम्म, So this your exit should be according to your entry only. ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री कर लेता है और स्टॉप लॉस के लिए वेट करता है डे चार्ट के लिए, कि अभी डे चार्ट पे क्लोजिंग नहीं आई है। सही बात है, होता है रियली। हाँ तो ये गलती है ना सर, ये माइंडसेट, और इसी के लिए तो रूल्स कहते हैं सर, और गोल्स कहते हैं। गोल्स को लोग मतलब मैंने देखा है कि स्लाइटली लेते हैं, लेकिन गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, नॉट फॉर ट्रेडिंग ओनली। करेक्ट। सर मतलब हमें जिस चार्ट में मतलब यदि डे पे देखना है तो डे पे, यदि खरीद रहे हैं तो डे पे ही होल्ड Yes. करना है। और यस यस सर। अच्छा सर, एक चीज और मेरा क्वेश्चन था, जैसे सपोज डेट मैं इंट्राडे करता हूँ यस और अब यदि हमें डिलीवरी में करना हो तो उसमें जैसे इंट्राडे में चार्ज ज्यादा लगते हैं और डिलीवरी में कम लगते हैं ब्रोकरेज, तो उसको मतलब डबल ब्रोकरेज लगेगी उस टाइम पे क्या, मतलब वो भी कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप? नहीं, आप अगर आपने इंट्राडे के लिए ट्रेड किया और अगर आप पोजीशन को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो 320 पे कोई भी ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली। नहीं, यदि मैं उसको उससे पहले यदि डिलीवरी में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपके केवल डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, दोनों नहीं लगेंगे। अच्छा अच्छा। और सर मैं सर एंट्री लेने के लिए मतलब पहली कैंडल का वेट करना है, मतलब जैसे 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो मतलब 10:15 तक वेट करना है फर्स्ट कैंडल आने का उसका, जैसे 1 आवर चार्ट पे देख रहे हैं तो उसके बाद एंट्री लेनी है। देखिए ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। अगर आप स्कैल्प ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेड कैंडल के ऑनगोइंग में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं है और वेट करके इंटरडे ट्रेड करते हैं तो क्लोजिंग के ऊपर ही लेनी चाहिए, जहां तक मेरी समझ है। बाकी आफ्टर आवर आर्मी चार्ट पे लेते हैं या 15 मिनट पे लेते हैं, जो भी ट्रेड है उसका क्राइटेरिया भी ये होता है कि अगर उसके ऊपर क्लोज होता है, दूसरा प्राइस अगर उससे ऊपर जाता है, जैसे मैं किसकी बात करूं, किसी को भी स्टॉक को ले लेते हैं 1 आवर चार्ट पे, जैसे मान लीजिए हम इस कैंडल पे हम ये हमारा आर्ली चार्ट है और हमारा क्राइटेरिया मान लो मैच हो रहा है यहाँ पे, तो हमें अगर आर्ली चार्ट पे क्लोजिंग हो रही है तो इस और दूसरी कैंडल डाउनवर्ड बननी शुरू हो गई है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर अपवर्ड स्टार्ट हुआ है प्राइस तभी हमें प्राइस को लेना है, ओके ट्रेड सर। लेना है। मतलब कि यदि बैंड पे हमारे नेक्स्ट कैंडल उससे ऊपर जा रहा है या फिर अब जा रहा है तभी लेना है। यस 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 यस। सर हम बाई की या सेल में भी तो सेम चीज कर सकते हैं, जैसे यदि कोई कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है तो उसमें हम हाँ सेल में भी तो कर सकते हैं उसमें हम। बिल्कुल बिल्कुल सेल कर सकते हो आप।
भरत जी, इसमें ना मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। सेल करने के Yes. बाद आपका जो प्रॉफिट है ना वो लिमिटेड है, वो प्राइस जीरो जा सकता है। मतलब आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पे सेल किया है तो जीरो तक जा सकता है, लेकिन 100 रुपए पे सेल किया और वो जैसे ही 120 होगा ना तो आप परेशान हो जाओगे। सो ऑलवेज प्रीफर करो बाई करके और तेजी में रहने का। सेल Okay, करके आज sir. तक किसी ने पैसा नहीं बनाया है। वो 100 Okay, रुपए sir. वाला शेयर बाई करके 80 जाएगा, लेकिन वो एक दिन 110 भी जाएगा, 150 भी जाएगा, 200 भी जाएगा, Yes. लेकिन 100 रुपए वाला शेयर ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा। तो उधर जो है ना, सेल करके आपके पास एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बाई करके अपॉर्चुनिटी मल्टी एक्स होती है। तो सेल Okay, sir. करके कोई मल्टीबैगर नहीं बना सकता है, बाई करके ही मल्टीबैगर बनेगा। Okay, sir. तो कैन वी क्लोज? Yes, sir. रिवर्सल के लिए सर मैंने ये लिस्ट बनाई है, इसको शेयर कर देता हूँ। चलेगा। ठीक है सर मेरा क्वेश्चन और था। यस। सर जैसे हमारा सुपर हीरो इंडिकेटर जैसे स्क्रीनर में आ रहा है, हाँ। तो सर वो आवर चार्ट पे या डे चार्ट पे वर्क करेगा, या उसको हम अपने अकॉर्डिंग ही मतलब जैसे सिस्टम है उसके हिसाब से इसमें सेट जो कर सकते स्टॉक हैं? आ रहे हैं सुपर हीरो में, जो स्टॉक आ रहे हैं वो डेली चार्ट पे सारे क्राइटेरिया मीट होने के बाद आ रहे हैं। बट उसमें ओके भी सर। कुछ चीजें ऐसी है कि कुछ स्टॉक सडनली 6 से 7% का अपमूव आ जा रहा है। इन द मॉर्निंग इटसेल्फ दैट इज गेटिंग 6 और 8% गेन, then it is a Yes, sir. risky bet. If you are okay with 6 to 8% of risk, then you can go for it or wait for any other opportunities. ओके सर। Then तो I will make a watch list of those stock, take on hourly chart. When it is come near to our exit or our AMA line and start reversal, you can make a position. ओके सर। और हेलो भूपेंद्र जी, आपने स्टॉक का लिस्ट शेयर किया? आई थिंक आई वाज आउट लिटिल बिट इन ये बिटवीन। इसमें इसी में डाला है सर, चार्ट में ही डाला है। I will share once again. हाँ, बिकॉज मैं थोड़ा मेरा लैपटॉप रीबूट हो गया तो फिर वापस चालू करना पड़ा मेरे को। Okay. I हेलो just सर sent watch list for next week. See, हाँ। नेक्स्ट वीक के this लिए all डाल दिया। stocks are away from stop loss. Almost 3 to 7% risk is there, but try to catch near to the AMA line. इसका मतलब हम हर वीक में ही शेयर करते हैं, डेली बेसिस पे नहीं रहता ना, हर वीक में। Yes. हेलो सर। Yeah. सर ये जो एएमए का जो लाइन आता है, एग्जिट और जो बाई का जो एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जो है, Yes. उसके लिए कोई अलर्ट वगैरह हो सकता है क्या? ये हमारे डेली अगर 15 मिनट पर करके रखूं तो हमारे पास अगर सेल सिग्नल आ जाए तो अलर्ट कुछ जाए। Yes. वो आता है ना, वो starting of the session same thing I will explain. If required once again I can explain you. एक्चुअली रंजन सर ना, मुझे लग रहा है कि मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं, मोबाइल से ही सेशन ले रहे हैं। नहीं सर, अभी कंप्यूटर में ज्वाइन किया था मोबाइल से, लेकिन अभी कंप्यूटर पर हूं। Okay. Yes. So और फाइनली आपने डिस्कॉर्ड भी क्रैक कर ही लिया। सर क्या हुआ, एक्चुअली मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, इसमें थोड़ा जो डिस्टर्ब हो गया था, अभी भी है जो। not an issue. So once again I will show how to set alert. Yes. So whatever you are buying, na, you just make a watch list of those stock as a my holding or whatever name you want to give. Then screen it is में very simple. 1 minute. I am sharing my screen. So this chart is visible. Yes sir. So what you need to do, you need to make a watch list, whatever stocks you are having in your portfolio. Then you need to make a alert one by one. Like if you want to create a alert for this JBKM, Yes. go create alert. Now, if you want to make on daily chart, then no need to change anything. If you want to make alert on hourly chart, first you need to select 1 hour and then put alert. So this alert will be on hourly basis. Now alert, I will put crossing down, superhero, and in superhero I will select AMA. And I will select this once per bar close. So once this close will be below this AMA line, you will get alert.
Now just save it. Now if you see here, it is come on hour basis. Here earlier I made on daily chart, so this alert is on daily basis. JB Chem Pharma 1 day closing down, and here I had set it JB Pharma 1 hour. So whatever time frame you want to set alert, first you need to select that time frame in chart. If you want to do for 15 minutes, just select 15 minutes chart and repeat the process. JB Chem Pharma closing down. My superhero. सर रेड होने अलर्ट आएगा, इसका कुछ है क्या? Yes, as soon as the close will be below the line. Now see this new this new alert came, JB Pharma 15-minute closing. So once this 15 minutes close will be below the line, it will give alarm. Tomorrow morning it may open below this, it will give alert like this. So whatever time frame you are using for alert, first you need to set those time frame in the chart. If you want on weekly basis, just select weekly basis and select alert as I had explained earlier. और मोबाइल पे अलर्ट के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल के अंदर, और नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा. Yes sir, mobile application already using sir. So you will get alert. Okay, one minute. In alert section, you have to select here notification. Notify in app, show pop-up, play sound. So you will get in mobile app directly. You can also take it on mail. क्या सर? You can also take it on mail ID. Send mail करेंगे तो यहाँ पे मेल पे जाना आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है. सर सर मेरा एक प्रॉब्लम क्या है, स्टॉप लॉस लगाने के लिए हैबिचुअल नहीं हूँ, उसके लिए सर कैसे हैबिट को है जो सर entry is very clear. Like entry we are taking once this stock start move up this AMA line. Similar way, just put when it is close, whether you are having loss of 2%, 10% or 20%, try to cut the position. So when your entry will be perfect, you will not hesitate to book profit. तो भूपेंद्र, ये क्लोजिंग जो है इन केस ऑफ ग्रीन कैंडल व्हेन प्राइस इज मूविंग, सो अपर पोर्शन रहेगा एंड डाउन के रेड कैंडल में नीचे वाला रहेगा क्लोजिंग एएमए को कनेक्ट करने के लिए. Here if you see Rajkumar sir, in this particular in two candles, this is the big red candle and this is. If you see here, this AMA line is not color is not changed, it is still green because the closing price is above the AMA line, so the line will be always green. If the close will be below the line, only then the color will be changed. तो मतलब रेड के अंदर बॉटम रहेगा और ग्रीन में टॉप वाला रहेगा क्लोजिंग. Yes. Yes sir. थैंक यू. सर अगर कैंडल क्लोज, अगर कैंडल उसको क्रॉस भी करेगी तो एमए रेड हो जाता है, क्लोज होने का वेट नहीं करता. ओके. और जेपीएस आपने जो लिस्ट भेजी है दैट इज अपने को 200 SMA के ऊपर अप एंड डाउन के ऊपर अपने को ट्रेड करने का, पुल बैक एंड समथिंग लाइक दिस. हाँ सर, मैंने वो सभी स्टॉक जो है वो डेली और वीकली और मंथली चार्ट पे अप ट्रेंड में है. मैंने वो लिस्ट बनाई है उनके स्विंग को ट्रेड करने के लिए. मतलब हर स्टॉक का एक स्विंग होता है, 2-4-5% बढ़ता है, 2-4-6% गिरता है. तो जब वो अब गिरे हैं तो जब वो रिवर्सल देंगे तो आई विल ट्रेड देम. ओके. तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है वो एक्चुअली. सर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड ही है फॉर लॉन्ग टर्म. हाँ अपवर्ड ट्रेंड है. और फिर भी सर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कोई गलती ना हो. श्योर. थैंक यू. एनी सजेशन सर? सर एक मिनट सर. कुछ लोग सर वीडियोस वगैरह मांगते रहते हैं, तो एक मिनट. भूपेंद्र जी, अभी ये जो वीकली वॉच लिस्ट दिया है ना, उसको एक्सप्लेन करेंगे या वी विल हैव टू एनालाइज दैट?
Actually, ma'am, these all are having the good actually movement in last session. But we need to wait when it comes near to our AMA line. Means these stocks are having good strength in the weekly chart and monthly chart. But suddenly 6 to 8% move has came. So we just need to wait, or we can put, we can take 50% at the extended, and then we can wait for average down when it comes near to our AMA line. ओके बट ये शॉर्ट टर्म होगा या व्हाट इज द ड्यूरेशन? It will be short term, ma'am, only. On the Short. daily chart exit based on AMA line. ओके ओके Need to follow on daily chart. डेली ओके Yeah. Sarma, are you going to share anything? Or should I सर close? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये मैंने सर चैट बॉक्स में ना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है। Okay. तो सारी वीडियो जिस चैनल पे है सेशंस की, रूल्स की एंड जो भी स्टॉक रिसर्च के ऊपर हम बनाते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें इसे, ताकि अपडेट मिलती रहे। अभी हम पीटर लिंच के 25 गोल्डन रूल्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो उन सभी को बनाने में और करने में काफी एफर्ट लगता है। तो अगर सब लोग सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मोटिवेट करेगा हमें फ्यूचर में अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और आप लोगों को भी टाइमली अलर्ट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई वीडियो के ऊपर या किसी के ऊपर क्वेरी है, जैसे अभी मैंने राधाकृष्ण दमानी की जो होल्डिंग्स हैं, वो उसकी एक स्नैपशॉट उनका और उनकी लाइफ के ऊपर शेयर किया था, आप जाइए और वॉच कीजिए उसे। आपको उनकी सारी होल्डिंग्स किस किस में है, उनका क्या क्राइटेरिया है स्टॉक को करने का, कैसे उनकी जर्नी है, वो शेयर किए। और इसके अलावा भी अदर इन्वेस्टर्स में हम काम कर रहे हैं जो एस इन्वेस्टर्स हैं हमारे इंडिया के, कैसे उनकी जर्नी रही है और क्या उनका माइंडसेट है। जो व्हाटएवर डेटा वी कैन कलेक्ट वी ट्राई टू कलेक्ट, और जो बनाते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाएं और सब्सक्राइब करें, और ताकि अपडेट्स भी मिलते रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अपना रिव्यू दें सेशन की वीडियो पे, जो शाम तक अपलोड हो जाएगी। अगर कोई मिस हो गया है तो वो देख सके। ठीक है Sir, I have